So we have started with the national income yesterday. A bit of the things we discussed about the sectors, and after the sectors we discussed about how the GDP can be calculated with the various components. The first we discussed about current prices and the constant prices. What are the alternative names of current and constant prices? Nominal value and real value. कौन सी वैल्यू एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? रियल वैल्यू. व्हाई? Because it's talk about the inflation rate as well. It tells you if there is an increase in income, but is it actually increasing? Because there must be increase in the inflation as well. So that is decreasing the value of national income. So that represents the actual value of your real GDP. Okay. Then we need to talk about a bit of the things. We talk about the goods as well, because all the goods comprising to be the national income. Here we will talk about the three methods. Today we will like to cover up the three methods of national income, how to calculate. That is not much more part that we need to understand. Still a bit of thing we need to have. National income calculate कैसे होती है? National income current और constant prices पे. What is the base year? 2011 and 12. Okay. So when we are comparing the national income at current prices and the constant prices, how it happens, and further, except of increase or decrease in the prices, how it is compared to the international level. Are you getting my point? कि अगर हम लोग national income को domestic level पे compare कर रहे हैं, it's okay. That can be done. Time series analysis. Time series analysis means टाइम के साथ साथ नेशनल इनकम कैसे बदल रहा है, टाइम सीरीज एनालिसिस. एंड सेकंड, इफ वी वांट टू कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर मींस टू से द अदर नेशंस, तो आप ये चीज याद रखेंगे, आगे भी हम लोग काम करेंगे इस चीज के ऊपर. हम चाहे पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, चाहे हम इनइक्वालिटी की बात करें, चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम इनकम की बात करें, जीडीपी की बात करें, दैट इज ऑफ द टू बेसिस. कैन यू ऑन दिस? दैट कैन बी ऑफ टू बेसिस, absolute and relative. Absolute and relative means to say एक कंपैरिजन होता है हमारा हमारे साथ, एक हमारा कंपैरिजन होता है दूसरों के साथ. हमारा कंपैरिजन हमारे साथ मतलब in last year I scored 6.1, now I scored 7.2, next 8.2, अब मुझे 9 तो मिनिमम लेके आना है. I am comparing myself with the time series analysis. And the second thing is, when I was getting 6.2, what my classmates were getting. When I am getting 7.2, what my classmates are getting. I am getting 8.2, what my classmates are getting. तो comparison दो तरह का हो गया, अपने आप से comparison और अब दूसरों के साथ comparison. Same as when we are talking about a national income, GDP, poverty, unemployment, inequality, हम एक comparison करेंगे हमारे साथ, world international नहीं, domestic only, and the second comparison we will do with the international standards. So we need to talk about how the two type of growths, two type of inflations, two type of poverty, unemployment, inequality is going ahead. Okay, so comparison of two types, absolute and relative. Getting my point? Absolute stands for the one side and the relative stands for the comparative analysis with the other people. Done? Now we need to have the one more important thing before we are going to deep down between the national income and per capita income. The few thing is required to understand. The national income can be calculated by the three methods. I am talking about the methods of measuring the national income. Methods of measuring the national income. It means how we can calculate the national income. National income, देश की income calculate करनी है, but it is not easy work. As I told you earlier, who is calculating the national income? You will answer? NSO? Who started it? Not who started NSO नहीं. Who started calculating national income? Anyone else can answer? In 1867, 68. And who find out the scientific method of calculation? We are R.B. Rao. That is into
1931, 32. So that was pre-independence, and after independence there was comes to be a committee. Which committee was there? National Accounting Statistics. So we are able to find out कि method तो बाद में बात है, calculate करता कौन है? Calculate करने की हमने measures दे दिए. Started with the CSO, Central Statistical Organization, and then it moves to Central Statistical Office. Very nice. But we said that has been again changed. Now we have, after that we have added over the National Statistical Accounting, है ना? हमने National Statistical Accounting को भी add कर दिया national income को calculate करने के लिए. These are the organizations, these are the committees which are calculating the national income. So how they are calculating? Calculate कर कैसे रहे हैं? For that we have three methods. I'm not gonna deep down comes to the methods. I'll just give you the crux because that is the part of the question comes in your paper. मैं आपको एक question भी बताऊंगी कैसे question आएगा. Let's talk about, we have a three methods of measuring national income. One is your income method. You must have gone through with that. Income stands for, income कहाँ से आती है? Income come from factors. How many factors are there? That is stand for land, labor, capital and entrepreneur. Okay. Land को ये factor है, इसको क्या मिलता है? Factor income. Obviously, if I am a factor, I am paying, I am working somewhere, I'll get an income out of it. Land stands for get for rent. Labor stands for wages. Capital stands for interest rate, and entrepreneur stands for profit. So that is the same thing we have already discussed कि हमारे पास जो जो factors हैं उन factor को जो जो income मिल रही है. Obviously country के पास यही सारे factors हैं. कुछ people land owners हैं, they are getting rent out of it, that's their income. People are having a labor can be a various kind, it can be white collar job, blue collar job, pink collar job or something like that. किसी भी तरह की job हो सकती है, skilled, unskilled, semi skilled, white collar job. फिर आती है capital, लोगों के पास पैसा है, they are keeping it into the finances and they are getting a rate of interest out of it. Further we have an entrepreneur वो होता है जो इन सारे factors को इकट्ठा करता है और risk लेता है production करने का, तो उसको उसके risk के बदले में कुछ मिलना चाहिए, and that is called your profit. Now they said that whenever you are getting that income, ये सारी income को total कर दिया जाए तो वो obviously देश की income बन जाएगी, because that is the people, that is the labor, that is the capital. यही सारे factors हैं जिनकी income हमारे पास आती है. Rent is obviously total, wages are total, rate of interest. This profit is divided into the further three parts. Profit किसको मिल रहा है? Entrepreneur को, businessman को मिल रहा है. जो ये businessman को profit मिला, ये profit आगे बढ़ जाएगा. कहां? It will given to a first part is somewhere somehow could be a dividend. Dividend मिले देंगे हम, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे का पार्ट देना पड़ेगा. Further we have to go for कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि अगर जब बिजनेस में से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है. कुछ पार्ट आपका प्रॉफिट का हिस्सा टैक्स में से चला गया. द थर्ड पार्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बटा नहीं आपके पास रह गया, दैट इज अ रियल प्रॉफिट एंड दैट यू विल री इन्वेस्ट इन फ्यूचर. तो आपका ये इनकम ऐसी इनकम होती है जिसको आप फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो समवेयर समहाउ दैट इज द इनकम ऑफ इकोनॉमी, जिसको आप फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव इनकम के रूप में यूज कर सकते हैं. सो दे सेड दैट दिस टोटल इज कॉल्ड ऑफ योर income method in which you are talking about national income. So I'm just removing it. You should get it only the one method, that is a income received from all the factors, and this factor income is considered to be the income method. Second हमने बात करनी है, sorry, this is the first. Second is expenditure method. Expenditure stands for खर्चा. How we are spending our money, that is coming to be C plus I plus G plus X minus M. Let me tell you, because those are new to economics, that is very much
नीडेड टू बी अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट, क्योंकि इन्हीं कुछ भी कर लीजिए इकोनॉमी इन 4-5 चीजों से बाहर नहीं जाती है, तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है कि ये क्या होती हैं। C stands for consumption. I'm writing in short, CUNZPTION. Consumption stands for, N stands for the cap. Consumption. And investment stands for investment. G stands for government consumption plus investment both. Government का खर्चा. And X stands for exports. M stands for imports. अभी देखिए क्या है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा वो कह रहे हैं आपका खर्चा, सिंपल सी बात है, आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है तो मुझे पता होगा आप जितना खर्चा कर रहे हैं वहीं से आपकी इनकम पता चल जाएगी। आप ज्यादा खर्चा करते हैं तो आपकी इनकम ज्यादा है, आप कम खर्चा करते हैं तो आपकी इनकम कम है। तो whatever the expenditure is coming in the economy, that is considered to be the part of income, obviously. So consumption is the first thing which is coming into the market. आप सब लोगों का जो कंजम्पशन है ₹500 टू लेके 5000 रुपी, दैट इज अ कंजम्पशन एंड दैट कंजम्पशन बिकम्स टू बी द, कम ऑन, आपका खर्चा किसी और की इनकम, इजंट? आपका खर्चा किसी और की इनकम, और वो किसी और की इनकम फिर किसी और का खर्चा। तो समवेयर समहाउ दैट इज सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। कल मैंने आपसे बात की थी ना, 100 रुपीज यहां से कहां जाते हैं और यहां से कहां जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी कितने हाथ बदलती है। सो दैट समवेयर समहाउ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी, दैट इज टू बी अंडरस्टैंड, इकोनॉमी में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं और वो पैसा मार्केट में कितना आ रहा है। सेकेंड, या आपके पास जो पैसे हैं आप क्या करते हैं उसका, या तो खर्चते हैं या बचाते हैं, दो ही पार्ट्स में डिवाइड होता है। अल्टीमेटली मेरी इनकम क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। मेरे पास 100 रुपीज है, 50 आई एम कंज्यूमिंग, 50 आई एम सेविंग। जो ये मैंने सेव किए वो कहां कर दिए, बैंक में डाल दिए, बैंक से वो कहां चले गए, इन्वेस्टमेंट, हमने बैंक में रखे थे कि वी विल यूज इट व्हेनेवर वी नीड इट, बैंक विल टेक दैट मनी एंड जस्ट गिव इट टू समवन एल्स, तो वही मनी सर्कुलेशन में आकर वापस आ जाती है। गेटिंग? सो समवेयर समहाउ सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं रेदर देन सेविंग, क्योंकि सेविंग का मतलब डंप होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब डंप नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो वापस मनी इकोनॉमी में आ गई। अ वेरी गुड फ्रेज, एक बहुत सिंपल सी बात है इकोनॉमिक्स में, इफ यू विल सेव इज इट गुड फॉर यू, अगर आप सेविंग करते हैं वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। लास्ट वन, आप सेविंग करते हैं आपके लिए अच्छा है, अगर हम सब सेविंग करेंगे तो अच्छा है। सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल बट नॉट फॉर इकोनॉमी। आप एक सेविंग करता है तो मेरी फास्ट फ्यूचर इट्स इन सेव डाउन, बट इफ ऑल विल सेव तो आप क्या कर रहे हो, तो आप कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो। जब आप सेविंग कर रहे हो तो आप खर्चा नहीं कर रहे हो, जब आप खर्चा नहीं कर रहे हो तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पेंडिंग आवर मनी ऑन द गुड्स। व्हेन वी आर नॉट स्पेंडिंग आवर मनी वी आर नॉट क्रिएटिंग अ डिमांड इन द इकोनॉमी। हम जब डिमांड नहीं करते हैं तो क्या होगा, बिजनेसमैन प्रोडक्शन नहीं करेगा ना। जब हम डिमांड, कोविड के टाइम पे किसी ने कार की डिमांड नहीं की तो क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ कार का, नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं होएगा तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। जब आपने बिजनेस ही नहीं चलाया तो आप लोगों को हायर नहीं करोगे ना, लैंड लेबर कैपिटल, तो उनकी इनकम भी नहीं होगी, तो इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ जा रही है। सो दैट इज व्हाई वी नीड सेविंग्स बट नॉट टू बी ऑल। सेविंग्स करनी जरूरी है, उससे इंपॉर्टेंट करना जरूरी है कंजम्पशन। तो हमें कंजम्पशन इकोनॉमी में किया, इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ये हम लोग कर रहे हैं ऐसे गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है, कहां करती है, is it a consumption or investment? It's an investment. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे खर्चा कर रही है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग बना रही है, चीजें बना रही है। सो गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग समवेयर समहाउ, बट गवर्नमेंट इज कंजम्पशन। गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट को बना रही है, गवर्नमेंट अपने लोगों को सैलरीज दे रही है, तो दैट इज अ कंजम्पशन समवेयर। स्पेंडिंग हो रही है लेकिन उससे समथिंग प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, वो बन गई चीज। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई चीज बनना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई टूल, कोई टेक्निक बनना, पैसा दिखना। कंजम्पशन का मतलब होता है चीज दिखे नहीं, खाई और खत्म हो गई। सो कंजम्पशन इज डन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। ये हमारे देश के अंदर अंदर की बात है। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, कल हमने यही 3 सेक्टर बताए थे आपको।
3 सेक्टर्स यही बताए थे, हम लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होता है और गवर्नमेंट होता है। अब ये कौन है? ये है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम ट्रेड करें, वी आर ओपन इकोनॉमी। हु इज अ क्लोज इकोनॉमी? हु इज नॉट ट्रेडिंग विद एनीवन, वी आर ट्रेडिंग विद अदर वन, सो वी आर अ ओपन इकोनॉमी। सो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वेन एवर यू आर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। तो जब हम चीजें मंगवा रहे हैं तो पैसा देश से बाहर जा रहा है, जब हम चीजें भेज रहे हैं तो पैसा देश में आ रहा है। हमने देश के पैसे की बात करनी है, तो समवेयर समहाउ ये पैसा तो देश में था ही, वी आर गेटिंग दिस मच डिफरेंसेस फ्रॉम द अदर साइड। हमने एक्सपोर्ट किए 100 रुपीज का, इसका मतलब 100 रुपीज आए। हमने इंपोर्ट किया 80 रुपीज का, तो 80 रुपीज गए, तो अल्टीमेटली 20 रुपए का फायदा हुआ। देश की इनकम कितनी हुई? 20 रुपीज। ये इसमें ऐड कर दो, ये भी तो देश की इनकम है ना। सो दैट कंबाइंड इज कॉल्ड योर national income. That's India's national income, domestic national income. But that's not domestic, that is a national income. Getting my point? तो इनकम मेथड में हम बात करते हैं फैक्टर्स की इनकम की, एक्सपेंडिचर में बात करते हैं सारे खर्चे की, और खर्चा कौन कौन कर रहा है? C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये डिफरेंस आपको समझ में आया? दिस इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। जितना आया जितना गया उसके बीच का डिफरेंस। डन। थर्ड इज माई, इसको C प्लस I प्लस G को रहने देते हैं, एंड थर्ड वी विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस, दैट इज टू बी डन। एंड द थर्ड मेथड वी हैव प्रोडक्ट मेथड, इसको और क्या बोलते हैं? परफेक्ट वैल्यू एडेड मेथड। इट मीन्स टू से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई you being as a, suppose you're a farmer, you're producing something, the last one, ठीक है? आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं व्हीट का, डन। आपने 100 रुपीज की व्हीट का प्रोडक्शन किया और आपने मार्केट में बेच दिया। जब आपने वो चीज बेची, आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट था, आपने व्हीट खरीदा, आप हैं वो चक्की पीसने वाले, ठीक है? आपने उसको 150 का आगे बेच दिया, व्हीट फ्लावर बनाकर आपने आगे बेच दिया। आपने 50 रुपीज अपनी एडिशन की, 100 का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 150 का आपने आगे मार्केट में बेच दिया। अब इसके बाद एक बेकरी थी, बेकरी ने रॉ मटेरियल खरीदा, यहां से शुगर खरीदी, यहां से कुछ खरीदा, उसने 200 के बिस्किट्स बना के मार्केट में बेच दिए। ये किसके पास है? होलसेलर के पास है। होलसेलर ने रिटेलर को 250 का बेच दिया, 250 वाले ने कंज्यूमर को 300 का बेच दिया, चलो 280 का बेच दो, 300 का बेच दिया। सो अल्टीमेटली अब आप कहोगे ये इसकी इनकम, फार्मर की इनकम, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम, ये सर्विस सेक्टर की इनकम, ये कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर, तो ये सारी मिला दो, देश की इनकम बन जाएगी, है ना? नहीं, ये तो डबल काउंटिंग हो गया। ये चीज तो 100 की स्टार्ट हुई थी, एडिशन कितना है? एडिशन कितना है? एडिशन कितना है? अल्टीमेटली चीज कितने की थी? 100 की। ये तो उसमें 50-50 तो आप अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो, वैल्यू एडिशन। आपने 150 की तो चीज मार्केट में सेल की, लाई कितने की थे? 50 का 100 का तो रॉ मटेरियल लाए थे। आपकी इनकम 150 रुपए थोड़ी है, आपकी इनकम कितनी है? सिर्फ 50 रुपीज। इनकी इनकम कितनी है? सिर्फ 50 रुपीज। इनकी इनकम कितनी है? सिर्फ 50 रुपीज। सो दैट इज टू बी डन ऑन डबल काउंटिंग। ये आपकी डबल काउंटिंग क्रिएट करता है कि एक चीज की वैल्यू को बार बार ऐड करते हैं, वो डबल काउंटिंग हो जाती है। इसलिए क्या करना है, टोटल आउटपुट में से आपने इंटरमीडिएट वैल्यू को माइनस कर देना। आपने कितने की बनाई? टोटल आउटपुट कितने का था? 150, लेकिन इंटरमीडिएट कितने का था? इंटरमीडिएट मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा आपने, वो कितने का था? 100 का। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 50 रुपीज है। वो तीनों सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, सारे सेक्टर अपना अपना रेजिडुअल निकालेंगे और उनको प्लस किया जाएगा, तब हमारे पास नेशनल इनकम आएगी।
डन। तो ये मेथड है प्रोडक्शन करने के दौरान आपके पास कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है। डोंट डू डबल काउंटिंग, आपको सिंगल काउंटिंग करनी है, जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ नेशनल इनकम, income, expenditure and the product method. Let's move ahead. अभी देखिए, आपको मैं 3 कंपोनेंट्स बताऊंगी। विद दिस हेल्प यू कैन फाइंड आउट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। डन। हमारी जो भी नेशनल इनकम होती है वो 3 वर्ड्स, 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। 3 कंपोनेंट्स क्या है? एक इसका फर्स्ट टॉपिक, एक इसका सेकंड टॉपिक, इसका कोई लेना देना नहीं है, एक इसका थर्ड टॉपिक, फुटनोट में जो लिखा है। ऐसे में अभी ऑल्टरनेटिव्स बनाऊंगी और आप उसको खुद आंसर करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट इट। फर्स्ट वर्ड आपका होता है ग्रॉस और इसका ऑल्टरनेटिव होता है नेट। सेकेंड वर्ड होता है परफेक्ट एंड इसका ऑल्टरनेटिव होता है, थर्ड वन होता है, आई एम राइटिंग ओवर देयर इज मार्केट प्राइस और इसका थर्ड होता है फैक्टर कॉस्ट। डन। 3 कंपोनेंट से मिलकर हमारी नेशनल इनकम बनती है। डन। नाउ यू नीड टू कीप अप 3 थिंग्स इनटू माइंड। लाइक फर्स्ट, ग्रॉस इज ग्रेटर देन नेट। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट वैल्यू छोटी होती है। आप एक बाय करके लाए कार, जब उसकी ग्रॉस वैल्यू थी 1 लाख रुपए, जैसे ही वो मार्केट में आई, 2 दिन चलाई, उसकी नेट वैल्यू कम हो गई, गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हुई? क्यों कम होती है गाड़ी की वैल्यू? क्योंकि चला ली, चलाने से क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज बीइंग डेप्रिशिएटेड। डेप्रिसिएशन इज बीइंग डिफरेंस ऑफ द बोथ। अब देखिए, हमने कहा डेप्रिसिएशन इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। नेट मतलब नेट वैल्यू कितनी है? आज गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपया है, जब उसमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट डाल दो, ठीक कर दो उसको जो खराब हुआ, तो वो फिर 2 लाख की हो जाएगी। 2 लाख की है, उसमें लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया तो वो 1 लाख की रह गई। तो डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट वैल्यू। डन। सेकेंड डिफरेंस स्टैंड्स फॉर that has been gone. That difference stands for the national is greater than domestic. Domestic क्या है? देश के अंदर अंदर की टेरिटरी। नेशनल का मतलब you are keeping and exports and imports with other nation as well. तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? That is NFYA. A भी कह सकते हैं, I भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि जब आप अब्रॉड की बात कर रहे हो, क्यों अब्रॉड की बात करें? हमारी कंट्री के कुछ लोग फॉरेन कंट्री में काम करने गए हैं, तो वो इनकम हमें भेजेंगे, वो हमारे देश की इनकम होगी। ऐसे ही वहां के कुछ लोग यहां काम करने आए हैं, तो वहां से इनकम लेकर जाएंगे। तो हमें तो टोटल देखना है ना कि नेशनल इनकम कितना बना। सो वी विल से इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इनकम गोइंग टू अब्रॉड। उन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपीज वो हमसे ले गए, 140 रुपीज हम उनसे ले आए, तो 60 रुपीज का नुकसान हो गया। इसी तरह हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली NFYA का मतलब इनकम गोइंग टू अब्रॉड एंड इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है नेट। नेट का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब वट एवर वी आर अर्निंग, वट एवर दे आर अर्निंग, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए, नेशनल जो है वो बड़ा है, डोमेस्टिक क्या है? छोटा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए
देश के अंदर की इनकम को नेशनल इनकम बनाना है तो एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी पड़ेगी। अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, छोटी करनी है, तो NFYA माइनस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली गेटिंग इट, क्योंकि नेशनल का मीन बड़ा, डोमेस्टिक का मतलब आपकी टेरिटरी के अंदर, आपने बाहर के लोगों को और अपने लोगों को बाहर से एड अपॉन नहीं किया। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस। द थर्ड डिफरेंस इज मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, FC स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? इन हाउस, घर में वो चीज बनाने का खर्चा क्या है, कॉस्ट क्या है? ये क्या है? प्राइस। इसका मतलब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है और ये प्रोडक्ट का प्राइस है। जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आपके प्रोडक्शन हाउस से बाहर जाती है तो उसमें क्या ऐड होता है? उसमें कुछ तो सब्सिडीज मिलती हैं और कुछ टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। यू हैव टू पे सम टैक्सेस। आपने GST लगेगा ना प्रोडक्ट बनाएंगे तो, और गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देगी ना आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आपका फैक्टर कॉस्ट तो चीज को बनाने का खर्चा है, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचने के लिए सब्सिडीज और टैक्सेस के बीच का रास्ता पार करना पड़ेगा। सब्सिडीज मिल रही हैं, टैक्सेस जा रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। सब्सिडीज आर प्लस, टैक्सेस आर माइनस, या ऐसे कर लीजिए माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, या प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। दोनों का डिफरेंस, हमारी चीज का कॉस्ट 100 रुपीज था, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगा दिया, 110 की हो गई, ऊपर 5% मुझे सब्सिडी मिल गई, 100 प्रोडक्ट 105 का हो गया। ये इसकी क्या है? मार्केट प्राइस। ये इसका क्या था? फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों के बीच ये क्या है? टैक्स प्लस हो गया। टैक्स से मेरी चीज का प्राइस मुझे देना पड़ रहा है ना, दैट इज टू बी डिडक्टेड, सब्सिडी इज टू बी प्लस्ड, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे आना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से निकल के जाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, प्लस करें कि माइनस करें? मार्केट बड़ी है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट तक आने पर NIT को प्लस किया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? Are you? So this is all the difference between the two factors: national income, net factor income, GDP, NDP, NNP, factor cost, market price. Are you getting these three differences? आप इन तीन differences को समझ लीजिए बस, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। हम इसको थोड़ा सा भी आपको एक्सप्लेन करें, आप इसको कर लीजिए। Are you done with this? Shall we move forward? Okay, let's go for time. Have a patience. Let's see it. Then we'll move ahead. आपको फिर इसके बीच का डिफरेंस मैं एक और चीज बताती हूँ। Is it understandable? Yes. Otherwise, you must be knowing about it a bit of earlier. Whatever the language you need to understand, अपनी अपनी मर्जी से उसमें लिख लीजिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। T stands for taxes। नेट का मतलब टैक्स से पैसे चले गए, सब्सिडी से पैसे आ गए, तो आने जाने का बीच का टोटल बेनिफिट, ठीक है, वो नेट हो गया कि टोटल टैक्स कितना लगा। 100 रुपए टैक्स लगा, 50 रुपए आपने हमें दे दिए सब्सिडी में, तो 50 रुपए मेरा टैक्स लगा, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। शैल वी मूव फर्दर? चलिए जी, अभी सॉरी इसको नहीं रिमूव करते हैं। Would you please get up? Yeah. Can you change this from here to there?
प्लीज बताइए। जीडीपी एमपी, पहला वर्ड चेंज करें, बड़ा, हाँ हाँ जी बताइए क्या करें। इसमें जो है टैक्सेस जो है, नहीं बच्चे, हम पहले वाले वर्ड को चेंज करना चाहते हैं ना। ओके प्लीज टेक अ टाइम, हैव अ सीट। आपको नेक्स्ट पॉइंट के लिए पूछती हूँ। माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब क्या बना, पहला वर्ड चेंज हो गया, पहला वर्ड चेंज हो गया। अब सेकंड वर्ड को चेंज कीजिए। डोमेस्टिक है वो नेशनल है, क्या करूं, ये छोटा है ना, बड़े पे लेके आना है तो प्लस है ना वाई है। सेकंड पॉइंट चेंज हो गया, पी तो पी है। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट पे लाना है। Are you getting it? Yes. So in that way you can change the any component towards each other. Getting? Let's go for the next one. Please बताएं, इसको यहां पे लेके आना है। Come on, last one. Yes, you get up. Come on with the answer. जितना भी समझ में आया, एटलीस्ट पता चले ना आपको आया कितना है। ऐसे सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी बैठे हम। पहला वर्ड देखो, नेट है, नेट है, कुछ चेंज करना है, नहीं करना। नेशनल है, पहला नेट होता है, दूसरा नेशनल होता है। ये क्या है, डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। प्लस करेंगे कि माइनस, बड़े से छोटे पे आने के लिए क्या माइनस करें, फैक्टर इनकम जो बाहर से आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस कमरे से बाहर की बात है, फैक्टर कॉस्ट घर के अंदर की बात है, minus NIT. Very nice. Please visit it. Are you getting these two differences? Are you sure now? Yeah. So these are the ways how we are changing the national income. आपको क्वेश्चन कैसे आता है? ये तो हमने प्रैक्टिकलिटी बताई टॉपिक की। क्वेश्चन में gonna ask if we are talking about GDP MP, whether the net factor income from abroad is to be added, factor cost to be included, and NIT is to be deducted. उल्टा पुल्टा लिख के रखा होगा। जैसे यहां पर क्या होना चाहिए था, इसके अंदर फैक्टर इनकम ऐड होती है, नेट फैक्टर इनकम ऑलरेडी डली हुई होती है। ठीक है ये बात? यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस टर्म। वन पॉइंट लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म। सेकेंड पॉइंट लिखा है, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स द, एक्सक्लूड द NIT। थर्ड पॉइंट है आपका, इट्स द डोमेस्टिक इनकम ऑफ नेशन। आप बताएं। बेटा तुम मुझे बैठे हो, अभी मुझे चाहिए कभी पता ना तेरे को। No worries. It is the आप बताइए इसमें से ट्रू टर्म्स कौन सी हैं? ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के फॉर्म में पेपर देना है हम लोग को, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पढ़ने हैं। NNP MP दे रखा है, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? नेट फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म। नेट फैक्टर इनकम इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, ओके। मार्केट प्राइड एक्सक्लूड NIT, नो। इट्स अ डोमेस्टिक इनकम ऑफ, डोमेस्टिक है, नेशनल है, गलत हो गया। इट्स द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज आंसर। इन दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट कि एक टर्म के अंदर ही जो चार चीजें हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। Further we have
Yeah, one more thing we can talk about is, अभी नेशनल इनकम की बात नहीं करते हैं, we can talk about the इंटरनेशनल मेजर। अभी हमने क्या बोला, हर कंट्री अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करती है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में। हमने बिलियन, ट्रिलियंस के अकॉर्डिंग पे उनको रैंक दे दिया, डन, कि आपकी नेशनल इतनी जीडीपी है, यहाँ पे इतनी जीडीपी है, यहाँ पे हम 3 ट्रिलियन हो गए, है ना। अभी हमने 5 पे जाना है, तो ऐसे अपनी ट्रिलियंस आउटपुट के फॉर्म में हमने जीडीपी बताई। अभी तक कौन सा कंपैरिजन कर रहे थे, कंट्री के अंदर अंदर। अब हमने कंट्री के बाहर जाना है, वी हैव टू कंपेयर इट, हाउ वी आर कंपेयरिंग इंडियाज जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर नेशन। लेकिन इंडिया की जीडीपी तो रुपीस में आएगी, उनकी जीडीपी आएगी डॉलर्स में। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत, कतर, क्वाटेरियन दिनार। What is the currency of China? Pound? देखिए, no doubt it is not a big question, but it is a part of a GK. आप लोग को कम से कम अपने सारे पड़ोसियों की तो पता होनी चाहिए, लाइक चाइना, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान एंड ऑल, बांग्लादेश, फिर थोड़ा सा बाद में फैलो। तो पहले अपने पड़ोसियों की करेंसी पता करो, देन वी गॉट टू नो अबाउट द टॉप 5 और 10 कंट्रीज, दैट टू बी ऑन देयर टिप्स। नाम बोला जाए, आपको करेंसी पता हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रधानमंत्री एंड प्रेसिडेंट्स नेम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द करेंसी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द economic point of view. Okay, so please, otherwise so that you should be knowing about the prime minister and president's names as well. Chalo, leave it aside, at least you should have the name of currencies because it is happening for the इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है, वो भी टॉपिक आएगा जब। तो हम लोग इंटरनेशनल मेजर करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल मेजर के लिए देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी, यू आर हैविंग अ दिनार, यू हैविंग पाउंड, यू हैव अ यूरो, यू हैव अ स्टर्लिंग्स, यू हैव पाउंड स्टर्लिंग, आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, आपके पास कुवैत हैं, कुवैतियन दिनार्स हैं, हर एक के पास अलग अलग करेंसी है। अब सब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट थिंग्स विल कम डिफरेंटली। What they said that come with the common currency, that is a US dollars. सारी कंट्रीज अपने आप को US डॉलर में चेंज कर लो, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं, सारे बराबर हो जाएंगे, then we will talk about the comparison, absolute relative comparative हो जाएगा। तो उस टाइम पीरियड पे उन्होंने एक मेजर ऑफ टर्म बनाई, US डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी एट US डॉलर, परचेजिंग पावर पैरिटी एट यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर के बिहाफ पे आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बताती है कि सारी कंट्रीज के कमोडिटीज जो भी आप खरीद सकते हैं, अ बास्केट ऑफ कमोडिटी विच यू कैन बाय फ्रॉम योर करेंसी एंड द बास्केट ऑफ कमोडिटी विच आई कैन बाय फ्रॉम माय करेंसी, कंपेयर द बोथ एंड विल गेट द एक्सचेंज रेट। हमें एक्सचेंज रेट पता चल जाएगा। कैसे एक्सचेंज रेट पता चला? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज। ये हमें दो कंट्रीज के एक्सचेंज रेट के बारे में बताएगा। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल एंड यू विल गेट द आंसर। हम 25 यूनिट्स ले लीजिए, बाय कर सकते हैं 250 रुपीज में। एप्पल ले लो, जो मर्जी ले लो, हम 25 यूनिट्स 250 रुपीज में बाय कर सकते हैं। कहां पर? इंडिया में। इन यूएस यू कैन बाय दैट 25 यूनिट्स विद $6। डन। उतनी ही कमोडिटी, same unit of goods of basket you can buy in US by $6. The same commodity of the basket you can buy in India by 250 rupees. So we are dividing 250 by 6. How much is it equal to? 41 point something? 2 something like, is it? 41 point something. इसका मतलब 1
डॉलर इज इक्वल्स टू 41.2 रुपीस। ये एक्सचेंज रेट पता चल गया, यही हमें चाहिए था कि हमें अब पता लग गया कि हम इन दोनों की वैल्यू बराबर किस सेंस पे आती है, इस रेट पे बराबर आती है कि अगर हम 25 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बाय करना चाहते हैं इंडिया में, वी हैव टू स्पेंड 250 रुपीज, वही आपको $6 में वहां पर वो मिल जाएगी। तो ये एक्सचेंज रेट बेसिस पे हमें वहां की करेंसी की परचेजिंग पावर पता चल गई। हमारी परचेजिंग पावर, अगर हम फॉरेन जाएं तो हमें $6 लेकर जाने पड़ेंगे ये चीज खरीदने के लिए। उससे क्या पता चला कि ये एक्सचेंज रेट है। गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। ये कॉस्ट है ना, the cost of good in one country and the cost of good in country 2 into 100। परसेंटेज लेना तो नहीं लेना तो डिवाइड ना करो, परसेंटेज में लेना है तो ले लो, उससे आपकी एक्सचेंज रेट डेसिमल में आता है। लेकिन हम एक्सचेंज रेट जो है वो डेसिमल में नहीं लेते हैं। तो ये हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला हो गया। So what is the formula? Purchasing power parity formula is cost of goods in a country 1 upon cost of commodity in country 2. This is the formula of purchasing power parity. कि आप दो कंट्रीज की परचेजिंग पावर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो you have to divide the cost of commodity in the two countries. That is the same as we have taken over there. ये भी हो सकता था अगर हम कुछ पॉन्ड्स ले लेते हैं कि 6-10 पॉन्ड्स, तो अब हम इनके साथ अपना कंपैरिजन अलग कर सकते हैं, इनके साथ अपना कंपैरिजन अलग। ये जब अपनी कंट्रीज कंपेयर करेंगी तो उनके डॉलर और पॉन्ड का परचेजिंग पावर पैरिटी आएगी। हम जब पॉन्ड के साथ करेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी पॉन्ड्स के बेसिस पे आएगी, लेकिन हम परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के बेसिस पे ही करते हैं। Are you getting it? So this is called the purchasing power parity formula. अब परचेजिंग पावर पैरिटी के बिहाफ पर हम अपनी कंट्री की जीडीपी निकाल लेते हैं कि हमने इतना प्रोडक्शन किया, आपने इतना प्रोडक्शन किया, हम अपनी प्रोडक्शन को डॉलर्स की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। आपका तो पहले डॉलर में है, आप येन थे, आप दिनार थे, आप टका थे, आप सारे जो है डॉलर में चेंज कर लो। फिर सबकी वैल्यू किस में आ गई? डॉलर में आ गई। यहाँ पे मिलियन बिलियन ट्रिलियन में थी, यहाँ पे सबकी वैल्यू यूएस डॉलर में आई। फिर इसको कंपेयर कर लेंगे। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ऑन दैट बिहाफ वी आर फाइंडिंग दिस। मैं थोड़ा सा आपको एक दो डेटा बता देती हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम नेशनल इनकम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेकिंग इट अगेन एंड अगेन। सो अभी तो ये था हमारा नेशनल इनकम, पर कैपिटा भी होगा। जैसे नेशनल इनकम डॉलर्स में आई परचेजिंग पावर पैरिटी में, इसी तरह पर कैपिटा इनकम भी यूएस डॉलर की फॉर्म में आ सकती है। क्यों? जैसे हमने वर्ल्ड इकोनॉमीज में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, व्हाटसएवर इस कंट्री, हमने उनको रुपीज में पहले सारा मिलियन ट्रिलियंस में लिया, फिर हमने परचेजिंग पावर पैरिटी में लिया जीडीपी को, एनएनपीएफसी को। ठीक है, इसी तरह हमने पर कैपिटा को भी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। नेशनल इनकम 2 तरह से कैलकुलेट होती है, करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे। कल हमने बताया, आज हम आपसे बता रहे हैं कि नेशनल इनकम 2 अलग तरीके से भी काउंटेड होती है, अपनी करेंसी के फॉर्म में भी और परचेजिंग पावर पैरिटी की फॉर्म में भी। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग जीएनआई इज कंसीडर्ड टू बी इंटरनेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर्स। ये क्या है? जब हम अपनी नेशनल इनकम को इंटरनेशनल, ये आई को कंफ्यूज मत होइएगा, ये पी ही है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हम वही बात कर रहे हैं। तो ये जीएनपी है, डोंट गेट कंफ्यूज, इट कैन बी द बोथ। ये भी हमने निकाला है ना, कैलकुलेट किया है, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये हमारी देश की इनकम है डॉलर की फॉर्म में। डन।
तो डॉलर के फॉर्म में हमारी नेशनल इनकम जो कैलकुलेट हो रही है वो $9073 है। ये हमारी इंडिया की जीएनआई पर कैपिटा है, जीएनआई परचेजिंग पावर पैरिटी एट यूएस डॉलर्स, दैट इज 90। ये देखो फ्लक्चुएट होती जा रही है, अ बिट ऑफ इंक्रीज कैन बी डन एवरी ईयर, 90, 94, 96, 92 होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। सो दैट रिप्रेजेंट्स द इन 2023 का डेटा वैसे ये, which is the US dollars income, and per capita US dollar is 7543। इसको आप मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले पर कैपिटा मैं बता देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, दो तरह की हो गई। नॉमिनल तो क्या है, जो हम अपने रेट्स पे निकालते हैं कंट्री के अंदर। जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है, तो डॉलर के रूप में चेंज की। अब हमने दोनों का वर्ल्ड इकोनॉमी अपना प्लेस देख रहे हैं। अगर हम अपना प्लेस इसके बेसिस पे देखते हैं नॉमिनल में, तो वी आर एट 139 एंड इफ वी आर कैलकुलेटिंग ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी वी आर एट 127। रैंक है ये हमारा इन वर्ल्ड इकोनॉमीज। डन। तो किसमें ज्यादा रैंक है हमारा, परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा रैंक ऊपर है ना, पास में है ना, 1 के पास में है, वो 39 उसके बाद में है। तो वी आर कंपेयर टू नियर बाय ऑफ। इसका रीजन क्या है, दोनों में डिफरेंस होने का रीजन क्या है? देखो, एक चीज में आप आगे हो, उसी चीज में आप थोड़े से पीछे हो। कारण क्या हो सकता है, डिफरेंस किस चीज का है? जब परचेजिंग पावर पैरिटी में आप आगे हो और उसमें पीछे हो, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब आपकी करेंसी अच्छी है कि बुरी है? कंपैरेटिवली गुड है ना दूसरे नेशन से। किसी कंट्री ने इतना ही प्रोडक्शन करके रैंक पीछे लिया, क्यों? क्योंकि उसका एक्सचेंज रेट हमसे बुरा था। बुरा मीन्स टू यू नो ना, मीन्स ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बुरा मीन्स टू से, इफ आई वुड से $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज, मैं यहां कहूं $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? 40 वाला अच्छा है, डॉलर वाला बुरा है। तो ये वैल्यू तो ज्यादा है, तो ये अच्छी नहीं है, ये बुरी है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर यही हमारी कंट्री वाला ये होता और मान लीजिए बांग्लादेश का ये और इंडिया का ये है, हमने सेम प्रोडक्शन किया होता, 200 रुपीज प्रोडक्शन किया होता, लेकिन एक्सचेंज रेट अलग होता, तो हमारे रैंक अलग हो जाते ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से हमारे रैंक पीपीपी में अलग है और नॉमिनल में अलग है। दैट इज द रीजन, क्योंकि वो पीपीपी किसके बेसिस पे बनती है? एक्सचेंज रेट के बेसिस पे बनती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसी पॉइंट में अगर हम इसको जीडीपी की जगह, ये पर कैपिटा रैंक हो गए हमारे, जीडीपी रैंक भी आपको बता सकती हूं मैं। We are nominally third, no, nominally we are on 5th and वैसे we are 5th, yes, nominally we हम 5th रैंक पे हैं और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे हम 3rd रैंक पे हैं। This is GDP per capita, this is GDP रैंक। GDP रैंक का मतलब टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ है, जितना भी कंट्री में आउटपुट हुआ है, उसके हिसाब से जब रैंक लगाएंगे ना, तो वैसे हम 5th बड़ी इकोनॉमी है। 5th बड़ी इकोनॉमी किसके भी पे है? अपनी कंट्री के प्रोडक्शन के पॉइंट पे। लेकिन जब उसको परचेजिंग पावर में चेंज करते हैं तो 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी बनते हैं, ठीक है। और पर कैपिटा का मतलब, पर कैपिटा मालूम है ना, जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन पर हेड के हिसाब से हमारी कंट्री का 127 और 139 रैंक है। सो दीज आर द 2 बेसिक पॉइंट्स ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा, जीडीपी एट nominal and GDP at purchasing power parity. Are you getting my point? So this is the one thing we need to understand. अभी इसमें आप लोग जो क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको ये रैंक्स आ सकते हैं, आपको टॉप एंड
द पुअरेस्ट कंट्री का नाम आ सकता है कि कौन सी कंट्री पर कैपिटा में सबसे बड़ी है? जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा सबसे टॉप पे कौन है? सॉरी, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं, सारी कंट्रीज के नाम बोलिए। नहीं नहीं, सोची भी नहीं होगी आपने। नॉर्वे, नॉर्वे, हाँ, लग्जमबर्ग एंड नॉर्वे बोथ आर कमिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड। लग्जमबर्ग एंड नॉर्वे, नॉर्वे का एचडीआई में भी रैंक 1 है इफ यू रिमेंबर। तो नॉर्वे का पर कैपिटा में भी कभी फर्स्ट आता है कभी सेकंड आता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा टग ऑफ वॉर में है, लग्जमबर्ग एंड नॉर्वे। तो ये टॉप पर कैपिटा इनकम कंट्रीज हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। इसी तरह आपको पुअर कंट्री भी ढूंढनी है, और इंडिया का रैंक तो आपको पता चल ही गया। डन। So further we can say we can move ahead to the further part. इसमें कुछ थोड़ा सा चाहो पर कैपिटा में अगर बात करना चाहो, ये तो वर्ल्ड लेवल की बात हो गई ना, इंडिया लेवल पे भी देख सकते हैं। इंडिया में पर कैपिटा इनकम में टॉप स्टेट कौन सी है? पंजाब? नो, नहीं, नो, वो लोएस्ट है, वो लोएस्ट है, पुअरेस्ट है बिहार। पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज द पुअरेस्ट, छत्तीसगढ़ एंड बिहार इज द पुअरेस्ट। कम ऑन, मुंबई इज अ कंट्री और स्टेट और पटना, सॉरी, एक चीज सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात सोचो, जब जो भी स्टेट बहुत बड़ी होगी ना, उसके टॉप पे आने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। एक और बताइए फिर, छोटी कंट्री, छोटी स्टेट, वेरी नाइस। टॉप इज द सिक्किम, सेकंड इज गोवा, देन आफ्टर अगर हम यूटीज को अलग कर दें तो दिल्ली, चंडीगढ़ is in a third and fourth rank. So otherwise we should not take a UT as to be the part of the states. UT should be separate. तो गोवा टॉप रैंक है, सेकंड, सॉरी, या गोवा इज इन अ फर्स्ट, सिक्किम और गोवा इज इन अ फर्स्ट और सेकंड, वो टाई ऑफ होता रहता है उनके बीच में। तो गोवा फर्स्ट रैंक है, सिक्किम सेकंड रैंक है, उसके बाद कर्नाटका है, फोर्थ रैंक पे हरियाणा है, फिफ्थ रैंक पे और बहुत सारी स्टेट्स आती है, गुजरात एंड ऑल। सो गॉट टू नो अबाउट इट कि अगर देखो गोवा छोटा है, वो 500 का भी प्रोडक्शन करेगा, उसकी पॉपुलेशन 10 की है, तो इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, वो 5000 का भी प्रोडक्शन करेगा, लेकिन उसकी पॉपुलेशन भी उतनी है, तो फिर भी उसके बराबर नहीं आ पाएगा। तो गोवा और सिक्किम जो है वो छोटी स्टेट्स होने की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम है और उनका आउटपुट कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिस वजह से उनकी पर कैपिटा इनकम स्टेटस जो है हाई है। लेकिन जब हम बड़ी स्टेट जैसे कर्नाटका की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, दे आर लाइक बूमिंग स्टेट्स, उनका स्टेट भी बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली बड़ी है, स्टिल दे आर स्टेटिंग ऑफ अ हाई स्टेज। और अगर हम यूटीज की बात करें तो दिल्ली, देन चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी एंड वो वगैरह बहुत पीछे है, वो टोटल रैंक में बहुत पीछे है। तो बिहार इज ऑन द लास्ट, isn't it? And you can find out Chhattisgarh is also coming on the same state. Poverty में छत्तीसगढ़ maximum highest पे जा रहा है। तो these are the comparison first of all in the international standards, then we have to come up the comparative standards for the domestic level. अभी जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस ये वर्ड लिख लिया और इसी के ऊपर ही घूमते रहना है। Go search out, find out the things. Things can be plus minus. हर साल 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद डेटा चेंज हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, डायनेमिक थ्योरीज कैन नॉट बी स्टैटिक। जो चीज रोज की बदल रही है उसको हम कहते हैं कि 3054 तो 36 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इंडिया में इंडिया में कुछ नहीं हो सकता है। डेटा सोर्सेज आर डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी हम डेटा की बात करते हैं, डेटा सोर्स अलग अलग हैं।
एक कहता है इंडिया में 27% पॉपुलेशन पुअर है, दूसरा कहता है 21% पॉपुलेशन पुअर है, तो आप किस दोनों सही हैं? वो कोई और सोर्स था, ये कोई और सोर्स है. सो प्लीज चेक आउट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू आर चेकिंग द डेटा. सो प्लीज गो फॉर ऑथेंटिक डेटा. सिर्फ गूगल सर्च किया, जो पहला वर्ड आया वो उठा लेना इस आपका यूपीएससी के स्टूडेंट्स का सोच नहीं होनी चाहिए. आप ग्रेजुएट या छोटे प्लस 1 प्लस 2 के स्टूडेंट्स नहीं हो कि गूगल पहली बार चलाना आया, विकिपीडिया डाला, जो वैल्यू आती है वो आंसर होता है. नो, आपको पहले सर्च करना है डेटा का, और डेटा के अब कितने सारे सोर्सेज आपको धीरे धीरे पता चलने लग गए. एनएसएसओ क्या करता है, सीएसओ क्या करता है, एंड सो ऑन. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अपॉन, जो हमने कल डेटा सोर्स से मुझे याद आ गया. हमने स्टार्ट किया था ना सीएसओ, फिर सीएसओ, फिर एनएएस आ गया इसके साथ, ऐड ही था ये फिर चेंज हो गया. आप बताइए अब क्या बना? एनएसओ. अब बन गया ये एनएसओ. किस किस को मिलके बना है? सीएसओ प्लस एनएसओ, दैट इज टू बी सीएसओ और एनएसएसओ, दोनों को प्लस करके उन्होंने एनएसओ बना दिया इन मई 2019. मई 2019 में इसका मर्जर किया है कि अब डेटा कलेक्ट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, दैट इज टू बी कैलकुलेट बाय एनएसएसओ एंड सीएसओ कैलकुलेट ऑल द स्टैटिस्टिक डेटा. किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन डेटा वो सीएसओ करता है. तो अब इन दोनों को मिला के सोशो इकोनॉमिक प्लस स्टैटिस्टिकल को ऐड कर दिया गया. तो दैट इज टू बी डन इनटू द मई ऑफ 2019. डन. इसके बाद हम पर कैपिटा इनकम पे एक चीज और डाल देते हैं, क्योंकि वो पर कैपिटा इनकम बेसिक. शुड आई रिमूव इट? ओके. As we are talking about the national per capita income, पर कैपिटा इनकम बेसिस पे हमने वर्ल्ड बैंक ने जब भी आपने नेशनल इनकम का डेटा देखना है, पर कैपिटा इनकम का डेटा देखना है, आपने वर्ल्ड बैंक का ही डेटा देखना है. www.worldbank.data@worldbank.org.in. तो आप उस पे देखेंगे तो आपको हमेशा वर्ल्ड बैंक का डेटा मिलेगा. उस पे आपके सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे. वर्ल्ड बैंक डेटा डालोगे, यू विल गेट द डेटा. वो डेटा गूगल वाला नहीं होगा, झूठा सच्चा, वो सच का डेटा होगा. तो हमने अब ये बात आपसे की कि जैसे हम लोग ने पर कैपिटा इनकम अपनी निकाली, हमने अपनी पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में निकाली. गेटिंग? नाउ वी आर कैटेगराइजिंग द वर्ल्ड नेशन ऑन द बिहाफ ऑफ पर कैपिटा इनकम. जैसे हम अपनी कंट्री में हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, पुअर इनकम ग्रुप बना रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे भी उन्होंने कैटेगरीज बांट दी. एक तो क्या हो गया, हाई इनकम, एक हो गया लो इनकम. आज के टाइम पे ना मिडिल इनकम कुछ रहा नहीं है. मिडिल इनकम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल. सो दैट्स व्हाई द सेम थिंग हैज बीन टेकन ओवर देयर, अपर मिडिल एंड द लोअर मिडिल. इनकम ग्रुप, इनकम ग्रुप, इनकम ग्रुप. डन. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के बेसिस पे वर्ल्ड ने आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू योर पर कैपिटा इनकम, डॉलर की पर कैपिटा इनकम. सो दे सेड दैट जिसकी भी इनकम लेस देन 1085 यूएस डॉलर्स होगी, जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1085 यूएस डॉलर होगी, वो कंट्री लो डेवलप इकोनॉमीज के पार्ट में आती है, वो लो इनकम कंट्रीज कहलाती हैं. तो देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इट इन द पेपर कि इंडिया की अगर इतनी इनकम है तो बताओ वो कौन सी कैटेगरी का पार्ट है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बना हुआ आई हैव सीन इन द पेपर. सो यू मस्ट बी नोइंग 1085 से नीचे वाली इनकम जो है वो हमारी लो इनकम ग्रुप्स होती हैं. देन 1085 टू 4255 इनके बीच के ग्रुप को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं. 4255 से 4256 डॉलर से अबव है 13205 यूएस डॉलर्स एंड अबव 132
टू 506 एंड अबव। इससे ऊपर के जिसकी भी इनकम है वो हाई इनकम कंट्रीज कहलाती हैं। तो इंडिया कहां पे लाई कर रहा है? अपर मिडल, लोअर मिडल। वी आर गिविंग अ इनकम ऑफ, वो जीडीपी था पर कैपिटा नहीं था, तो हम इस इनकम ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। वी आर अंडर द लोअर मिडल इनकम ग्रुप विच इज टू बी कंसीडर्ड एज अ नॉट टू बी डेवलप्ड नेशन बट नॉट टू बी अंडर डेवलप्ड नेशन। हम जो है डेवलपिंग नेशन के बीच के पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो हमारी जो इनकम है वो नेशनल इनकम थी, वो पर कैपिटा इनकम नहीं थी। प्लीज कीप इन योर माइंड, उसको डिफरेंस को समझिएगा। तो here we can say there is a change in the groups। अभी धीरे धीरे क्या, ये बिल्कुल रिसेंट है। इससे पहले वाला देखोगे तो उसमें यहाँ हो सकता है 45 हो, 35 हो, थोड़ा सा मतलब रुपी डॉलर्स का डिफरेंस आ रहा है। Done? So that dollars are being changing and that is leading to the economies to be the upper middle and lower middle। थोड़ा सा भी डॉलर अगर चेंज हो जाता है हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, but now we are lying into this category। So this is about the GNI per capita। ये किसके behalf पे divided है? Per capita, PPP, US dollars। इसके बिहाफ पे कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है एंड इट इज इन 4 कैटेगरीज इन विच वी आर डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन। डन। सो अभी देखिए, जैसे आपने ये वर्ल्ड इकोनॉमीज के बेसिस पे डॉलर्स में अपना निकाला, इसी तरह हम लोग इंडिया का इन द स्टेट वाइज भी परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के बेसिस पे भी स्टेट्स निकालते हैं, क्योंकि हमने वही वैल्यू, वही रैंक, वही परचेजिंग पावर पैरिटी स्टेट के अंदर भी चलेगी जो इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चली। उसके बिहाफ पे व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द पर कैपिटा इनकम, हमारा जो इंडिया का गोवा है दैट इज टेकिंग 5821 यूएस डॉलर्स। उसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम से भी हाई है, 5821 US dollars and सिक्किम stands for 5578 US dollars। तो मतलब वो एवरेज इंडिया की पर कैपिटा इनकम, यूएस डॉलर्स की पर कैपिटा इनकम से भी हाई इनकम है। वैसे भी हमें पता है इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, कल बताया था, करंट एंड कांस्टेंट पे। करंट पे कितनी है? अच्छा, करंट पे ज्यादा होगी कि कांस्टेंट पे ज्यादा होगी? करंट पे ज्यादा होगी ना। करंट पे तो अभी वाली है, कांस्टेंट तो बेस ईयर के साथ कंपेयर कर रहा है। सो करंट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग हमारी पर कैपिटा इनकम है 1,72,000, 1,72,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है, और कांस्टेंट के बेसिस पे 96,000 रुपीज है, जबकि गोवा की पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपीज है, सिक्किम की पर कैपिटा इनकम 3,86,000 रुपीज है। तो वो वैसे दिख रहा है ना, रुपीज में भी ज्यादा है और यूएस डॉलर्स में भी ज्यादा है। सो प्लीज कीप दैट डेटा विद यू, फाइंड आउट द डेटा। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, जस्ट आस्क मी, आई विल जस्ट प्रोवाइड इट टू यू, बट ट्राई टू फाइंड आउट। आपको डेटा के बीच में बहुत ज्यादा फंसाया जाता है समवेयर समहाउ क्वेश्चंस में। जैसे इसी में पूछ लिया टॉप स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम, इंडिया की एवरेज से ऊपर वाले स्टेट कौन से हैं, 3 ग्रुप बना देंगे, तो आपको निकालना कौन सा स्टेट आ गया। तो गोवा, सिक्किम एंड द नेक्स्ट इज दिल्ली, कर्नाटका। इनकी जो है एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से हाई है। डन। वो फिर से तेलंगाना, और तेलंगाना भी अभी इट्स कमिंग टू बी एन अपर स्टेट्स है ना, वो भी अभी 5 में आने शुरू हो गया है। तो इसको पहले हम लोग, क्योंकि वो डेटा में आता नहीं था, पहले तो डेटा है नहीं टाइम सीरीज का हमारे पास, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, नॉट अभी मीन्स टू से बट फ्यू इयर्स बैक। तो तेलंगाना इज दिस कमिंग अप एज अ गुड स्टेट फॉर अपर स्टेट, ओके, डोंट टेक इट इज लाइक बिहार एंड ऑल, लाइक छत्तीसगढ़ वाला स्टेट है, दैट इज कमिंग टू बी हायर स्टेट। सो दैट इज अनदर वे टू कैलकुलेट इंडियन इकोनॉमी में भी। पहले पर कैपिटा इनकम निकालनी है करंट एंड कांस्टेंट पे, ये कितनी है 1,72,000, ये है 96,000। फिर हमने, ये तो हो गए इंडिया रुपीस के अंदर, फिर हमने परचेजिंग पावर डॉलर के अंदर निकालने, इसके भी टॉप और इसके भी लोएस्ट। ये डेटा भी आप अपने पास 5 स्टेट्स टॉप के डेटा को कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू एड अपॉन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द पर कैपिटा इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम। गेटिंग व्हाट एल्स वी कैन से इज, एक नॉमिनल जीडीपी के बारे में आपको थोड़ा सा बात कर सकते हैं, या शॉर्टकमिंग ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बात कर सकते हैं।
a bit of I'll say, क्योंकि आपके पास theoretical concepts भी बड़े सारे आते हैं. बस लास्ट पॉइंट है, then we are gonna wind up. जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, या नेशनल इनकम तो नहीं कह सकते, इधर तो दिस वन और पर कैपिटा इनकम एट रुपीज ओनली, करंट प्राइसेस पे. क्या शॉर्टकमिंग्स आपको लगती हैं? नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम में क्या कमियां रह गई? कुछ 2-3 पॉइंट्स जो आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा है, जो मैंने आपसे कल बात की थी. आर यू गेटिंग 1 लाख रुपीज, है ना? तो वो वाली बात. हाँ जी बोलिए. जो नीचे वो नहीं, वो उसमें पर कैपिटा इनकम की क्या गलती है? उन्होंने तो कैलकुलेट करके आपको बता दिया. आपको कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ लगा? क्या गड़बड़ लगा पर कैपिटा इनकम में कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,72,000 रुपए है? आपको क्या लग रहा है इसमें गलत है? क्यों गलत है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें बेचारे कैलकुलेशन की क्या गलती है? आप उसकी बात कीजिए ना, वो कहां गलत है? वो तो उसके आफ्टरमैथ्स है, वो तो उसके बाद की कहानी है कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ. वो कैलकुलेशन में गलती कहां है? वो टोटल कैलकुलेट करने वाली में क्या प्रॉब्लम आई? नेशनल इनकम कब सेंसस से निकाल रहे हैं हम? हाँ ठीक है, वैसे आप कुछ पॉइंट कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा. चलो, क्या आपकी पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की, स्टेट की पॉवर्टी को बता रही है, इनइक्वालिटी को बता रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को बता रही है, इन्फ्लेशन को बता रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक नंबर दे दिया which is not representing the actual picture of the society. Second, आप क्या है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. आपको पर कैपिटा इनकम नहीं मिल रही. हमने कल कह दिया कि आपके हिस्से की पॉपुलेशन इनकम को ही लेके जा रहा है. एक्चुअल तो यू आर नॉट वर्किंग, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द इनकम? 0 to 14 years of age people, those are not supposed to be the part of the labor force. How they can get the income? वो पॉपुलेशन का हिस्सा होके पर कैपिटा कैसे लेके जा सकते हैं? ओल्ड एज पीपल जो 60 से प्लस हैं, जो जॉब ही नहीं कर रहे, वो इनकम का पार्ट कैसे लेके जा सकते हैं? सो अल्टीमेटली कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ किया कि इट शुड बी ओनली फॉर द वर्किंग फोर्स. सिर्फ टोटल पॉपुलेशन में से जो 14 से 59 वाले हैं ना, उन्हीं को पॉपुलेशन का हिस्सा मिलना चाहिए पर कैपिटा इनकम का, रेदर देन कैलकुलेटिंग द 0%. 5 इयर्स के बच्चे को भी 1 लाख रुपए मिलेगा और 75 इयर्स के एज पर्सन को भी 1.5 लाख रुपया मिलेगा. सो दैट इज सपोज टू बी नॉट अ कैलकुलेटेड इनटू वे. वो तरीका जो आपका कैलकुलेशन का है वो गलत है कि लमसम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो. इट शुड बी द वर्किंग पॉपुलेशन. डन. फर्दर एक और प्रॉब्लम क्या है? पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की बढ़ रही है, बट वहां पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं. वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या नहीं है, हार्डली इट मैटर्स. पॉवर्टी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, हार्डली इट मैटर्स. सो ये सोशल मैटर्स को इग्नोर कर रहा है और किसको सिर्फ बात कर रहा है? मॉनेटरी मैटर्स को, और वो भी सिर्फ फेक कैलकुलेशंस को. तो समवेयर समहाउ देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक इनटू द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम और द पर कैपिटा इनकम. डन. तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हमें साथ करने जरूरी है, व्हिच इज कमिंग टू द पॉइंट्स. जैसे मैंने आपको नेशनल इनकम का बताया ना, ऐसे 5 पॉइंट लिखे होंगे. बताओ कि कौन सा नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की गलत चीज नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज गलत नहीं है ना? तो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस नेशनल इनकम. अभी हम कल स्टार्ट कर सकते हैं. एनी स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम योर साइड, देन आई कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू विद माय ओन. कोई आप टॉपिक करना चाहते हैं? शैल वी गो फॉर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप बोले. इससे रिलेट ही करता हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन कर ले पहले. पॉपुलेशन से पॉवर्टी आएगी, नेशनल इनकम से पॉपुलेशन आएगी, पॉपुलेशन से पॉवर्टी आएगी. सो वी कैन टॉक अबाउट एनी टॉपिक, है ना? सो रेंडमली वी हैव टू गो फॉर ऑल, क्योंकि हमने आपके सिलेबस में देखा आपको गिनी कोएफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व, ये 2 पॉइंट्स अ बिट ऑफ टच इज देयर, जो कि एक नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट ने कभी पढ़े ही नहीं है, कभी सुने भी नहीं है. शायद इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ने भी नहीं पढ़े होंगे गिनी कोएफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व. वो ग्रेजुएशन तक नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन में आके आती है वो चीज. तो हम लोग इनइक्वालिटी से उस पे जा सकते हैं. डन. Either we can talk about population or we will talk about the Gini coefficient. इन दोनों में से हमको, सॉरी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. इन तीनों में से कोई एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू पीपल, जो भी आप यहाँ 1.5 हाफ आवर 2 आवर्स लगा रहे हैं,
इट विल गो ऑन वेल, बिल्कुल वेस्ट है वो, अगर आप घर जाके एक बार दोबारा नहीं देखते, रिवाइज नहीं करते, सिर्फ जो नोट्स बनाए हैं वो एक बार देख लो क्या 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 था, देन तो इट इज फ्रूटफुल, अदरवाइज आगे दौड़ और पीछे छोड़, दैट इज ऑफ नो यूज. Then don't waste your time with coming over there, sitting over there, giving your time to me, and you're not giving out productive results. Please put your efforts, because these are the years which you can get it out of something. इसके बाद वो चांस दोबारा नहीं मिलना है. I usually give the same example to all my classes. If I want or wish to give my 10th exam again, मैं नहीं दे सकती हूँ. मेरे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी है, मेरे पास सोर्स भी है, मेरे पास बैक भी है, मेरे पास नॉलेज भी है 10th का पेपर देने की, लेकिन मैं नहीं दे सकती हूँ. टाइम जा चुका है, वो जा चुका है. सो दैट इज द सेम थिंग विद यू पीपल. वंस इट्स गॉन, यू आर नॉट सपोज्ड टू कम बैक फ्रॉम दैट. तो प्लीज अपने इस रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए. ये टाइम है जो आपको कुछ दे जाएगा. सोइए, जो मर्जी करिए, बट टाइम दीजिए. जब आपके पास ये फील होना शुरू हो जाए ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो इंसान सबसे प्रोडक्टिव इंसान है. अगर आप यहां से जाकर 2 घंटे फोन चला रहे हैं कि ठीक है अभी 2 घंटे पढ़ के आए, अब थोड़ा रेस्ट कर लें, आप जैसे एस्पिरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए. टाइम होना ही नहीं चाहिए. यू आर सो बिजी, यू डोंट हैव टॉक टू पीपल लाइक फॉर हाफ एन आवर. यू आर सपोज टू बी सो बिजी विद योर सेल्फ ओनली. एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट कर दो. एक चीज से मोनोटोनस आ गया, दूसरा स्टार्ट कर लो. टेक अ ब्रेक, बट डोंट टेक इट एज ब्रेक्स. टेक अ ब्रेक. अपने कॉलेज के जो टाइम्स हैं उसको मैनेज करो, लेकिन ब्रेक बड़ी बड़ी मत लो. 2-2 घंटे गायब हो, वो एक अच्छे एस्पिरेंट का सिम्टम नहीं है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस यूथ. ये जो इस टाइम में आपके पास एनर्जी है ना, वो आफ्टर 31 के बाद नहीं आएगी, 30 के बाद नहीं आएगी. यू आर नॉट सपोज टू, आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी. So please keep your energy to be high on this time period so that you can come out with the productive results. छोटे छोटे टारगेट दो अपने आप को, अचीव करो and tap your back. Yes, I can do it. Then you go for next day. Tap your back. अगर आप आज कल से बेहतर नहीं है, तो आप कल बेहतर हो भी नहीं सकते. तो कल से आज बेहतर होना जरूरी है अगर आप कुछ पढ़ेंगे. Getting?